স্মারক বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্ব বা দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতা আমরা আয়োজন করতে পেরেছি। সংস্থান প্রত্যেক বছরই গোপীনাথ কবিরাজ নামাঙ্কিত দুটি মেমোরিয়াল লেকচার বা স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে, একটি ওনার জন্মদিবসে এবং একটি প্রয়াণ দিবসে। কিন্তু বহুবিধ অক্ষমতা সঙ্গে চলতে চলতে অভ্যস্ত হওয়ায় বিগত বা এই বছরে আমরা হয়তো সেই দিনগুলিতে করতে পারিনি। আগামী দিনে আমরা এই দিনগুলিকেই গুরুত্ব দিয়ে এই দিনগুলিতেই করার প্রচেষ্টা করব। আজকে একটি অন্যভাবে একটি বিষয় খুবই বলার ইচ্ছে করছে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গোপীনাথ কবিরাজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলে বা বলার প্রয়োজন আশা করি হবে না। প্রকাণ্ড পণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের দার্শনিক সম্প্রদায় বা প্রস্থানকে তিনি যেভাবে একক প্রচেষ্টায় উচ্চ শিরে উত্তীর্ণ করেছেন, তা যে কোনো ভারতবাসীর পক্ষেই সেটা অতিশয় গর্বের বিষয়। এই সারস্বত চর্চায় আমার আজকে ব্যক্তিগতভাবেও খুবই আনন্দের লাগছে, বা আমি আনন্দের বলা যেতে পারে সাগরে অনেকটাই নিমজ্জিত যে অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বসন্ত কুমার মিশ্র, তিনি তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত বলা যেতে পারে মূল্যবান বক্তব্য আমাদের কাছে উনি উপস্থাপন। প্রফেসর মিশ্র সম্পর্কে আমি খুব কয়েকটি কথাই বলবো, কারণ বলতে গেলে অনেক কথাই মননে অনুভূতিতে বারবার ধ্বনিত হবে। সময়ের অভাব, আমি দুটি কথা বলেই বিরত থাকার চেষ্টা করছি। একটি হলো, ওনার সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয় জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির মধ্যে, আমি দুটো জিনিস খুব আন্তরিকভাবে দেখেছিলাম। সেটি হলো, ওনাকে যখন প্রথম দেখি তখনই আমার মনে হয়েছিল যে আমি এক খুব স্বচ্ছভাবে এক ভারতীয় পরম্পরায় যে শিক্ষকের যে অনুকৃতি, তার সঙ্গে পরিচিত হলাম প্রথম। তারপর আমার স্নেহভাজন বিনয় বরের সৌজন্যে এবং সহায়তায় যখন স্যারের সঙ্গে আমি কথা বলার সুযোগ পাই এবং কথা বলি এবং একটি বিশেষ প্রয়োজনে ওনাকে অতিশয় বিরক্ত করি, তখন আমি বুঝতে পারি যে একটি বিশেষ মানে কামনা বা বিশেষ একটি জিজ্ঞাসা যে অনেক দিন ধরে আমার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেটি আজ আমি মানে সেই জিজ্ঞাসা থেকে নিবৃত্ত হলাম। বলা ভালো, তিনি এতটাই যত্ন সহকারে সেই জিজ্ঞাসাকে মর্যাদা দিয়েছেন, সেই জিজ্ঞাসাকে উনি মনন করেছেন, এবং মানে বাইক চালাতে চালাতেও উনি যেভাবে মনন করে আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে দীর্ঘদিনের যে একটি মানসিক জটিলতা সেটি কাটিয়ে তুলে পরবর্তীকালে সারস্বত চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, তাতে আমি একটি কথাই বলতে পারি যে ভারতীয় মনীষীগণ, ভারতীয় আচার্যগণের যে রূপ, সেই রূপ উনি ধারণ করে আমাদের মতো অতিশয় কম বিষয় বোঝা লোকের কাছে উনি যেভাবে আবির্ভূত হয়েছেন বা ওনার আবির্ভাব ঘটেছেন, সেটি আমাদের কাছে এক পরম প্রাপ্তি। আমি অধ্যাপক মিশ্র স্যারকে অনুরোধ রেখেছিলাম যে আমাদের দ্বিতীয় মেমোরিয়াল লেকচারে যদি উনি একটি ভাষণ দেন বা উনার মননে যে ভারতীয় কাব্যচর্চা যে গতিতে বা যে ধারায় উন্মেষিত হয়েছে, সেটি যদি উনি প্রকাশ করেন, আমরা তথা সমগ্র
ভারতবর্ষের সারস্বত চর্চাকারীগণ অত্যন্ত উপকৃত হব। উনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকে আমাদের কাছে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চলেছেন। এই জন্য আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তাকে আমরা সশর্ত চিত্তে প্রণাম জানাই, নমস্কার জানাই এবং আন্তরিক শুভেচ্ছাও জানাই, কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে এই সারস্বত চর্চায় সঙ্গ দিয়েছেন। সর্বোপরি শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব, বলভদ্র এবং সুভদ্রাজিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আমি অধ্যাপক মিশ্রকে আহ্বান করছি যে আচার্যদেব আপনি কৃপাপূর্বকং ভবতঃ মধুরবচনং প্রদীয়তাম। নমস্কার, সকলে ভালো থাকুন। नमस्कारः। जयतु जगन्नाथः। मम वचनं सर्वे शृण्वन्ति। धन्यवादः। अहं संस्कृतं उररीकृत्य संस्कृतभाषया वदिष्यामि। तदर्थं तत्र बङ्गलाभाषां वक्तुं न शक्नोमि, अवगन्तुं शक्नोमि, अतः क्षमां प्रार्थये। संस्कृतम् उररीकृत्य वदिष्यामि। मध्ये मध्ये हिन्दीमपि भवति चेदपि कथयिष्यामि। अस्तु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। इदानीं रथयात्रा चलति। प्रभुः जगन्नाथः रथे विराजते। स्वः गुण्डिचा मन्दिरं बलभद्रदेवः राराजते, भगिनी सुभद्रा अपि। अहं तस्यां पुर्याम् इदानीं निवसामि। अतः पुरी क्षेत्रतः, पुरुषोत्तम क्षेत्रतः अत्र उपस्थितानां समेषाम् अभिनन्दनं करोमि, अभिवन्दनमपि करोमि। विशेषतः शंकर महोदयः मम विषये अत्र बहु किमपि उक्तवन्तः। एकवारं तैः सह अहं मिलितवान्। ते महोदयाः अस्माकं श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयम् आगतवन्तः। तैः सह मम साक्षात्कारः अभवत्। तदा अहं ज्ञातवान् एते शंकर महोदयाः वस्तुतः बहुविध व्यक्तित्व सम्पन्नाः भवन्ति। अतः तत्सर्वदा प्रमाणमपि भवति। गोपीनाथ कविराजस्य प्रकाण्ड पंडितस्य स्मरणं क्रियते। तदर्थं संस्थान पक्षतः अयं कार्यक्रमः। अतः आदौ गोपीनाथ कविराजं वयं सर्वे वन्दामहे। इदानीं विद्वांसः भवद्भिः अयं यः साक्षात्कारः इदानीं क्रियते, तत्र कारणं भवन्ति इमे शंकर महोदयाः। अतः तेषां कृते कार्तज्ञं विनिवेदयामि।
कथ्यते काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् भवन्तः सर्वे विद्वांसः विदुष्यः धीमन्तः अत्र सन्ति। शंकर महोदयः विद्वांसः भवन्ति, अतः अस्माकं समेषाम् एकत्र आह्वानं कृत्वा अत्र अस्माकं समेषां सम्मेलनं कारयन्ति। तादृशः सर्वदा अभिनन्दनीयः भवन्ति। सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि पुण्येन भवति वचनम्। अद्य यस्य कथां वदिष्यामि सः महान् कविः नाट्यकारः भवभूतिः एकदा उक्तवान् उत्तररामचरिते, सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति। अगर पुण्य होता तो सज्जनों के साथ सज्जनों का समागम होता है, पुण्य नहीं है तो सज्जन मिलते नहीं है। इसी वचन के अनुसार हम ये सब बोल सकते हैं कि यहाँ उपस्थित सभी जो है सभी सज्जन है, इसलिए हम लोगों का सबका समागम हुआ है। अस्तु इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। मम छात्रः विनयः एकवारम् उक्तवान्, सर् भवन्तः वदिष्यन्ति किमपि वयं श्रोतुम् इच्छामः, तदर्थम् अयं कश्चन विषयः मया चिन्तितः। अस्तु, अयं नूतनः विषयः, अन्ये बहवः जानीयुः मनोविज्ञानं काव्यादिकं च, किन्तु काव्यादिभिः सह मनोविज्ञानस्य अपि कश्चन सम्बन्धः एतस्य उपरि अद्यत्वे रिसर्च गवेषणा अपि प्रचलति। अतः एकं तादृशं विषयम् अहं चिन्तितवान्। तत्र भवभूतेः यत् उत्तररामचरितम् अस्ति तेन सह मनोविज्ञान विश्लेषणं भवतु, किञ्चित् तदुपरि वदामः, आलोचयामः। अत्र केचन बिन्दवः मया चिताः, तान् बिन्दून् आधारीकृत्य अहं वदिष्यामि। तत्र भवभूतिः कः असौ तद्विषये आलोचयामः किञ्चित्। मनोविज्ञानं किम् इति, मनोविज्ञानं किं तदुपरि किञ्चित्, मनोविज्ञानेन सह नाटकस्य कः सम्बन्धः, तृतीयः बिन्दुः। अन्तिमे उत्तररामचरिते मनोविज्ञान तत्त्वानां सन्निवेशः कथं भवभूतिना कृतः, तं विषयम् आधारीकृत्य आलोचयामः। सर्वे भवन्तः जानन्ति, भवभूतिः संस्कृत साहित्ये महान् नाट्यकारः। असौ काश्यपगोत्रोत्पन्नः। दक्षिणा हि विदर्भेषु पद्मपुरे अस्य वासस्थानम्, अस्य जन्मस्थानम्। अस्य पितामहः भट्टगोपालः, पिता नीलकण्ठः, माता जतुकर्णी, गुरुः ज्ञाननिधिः। अयं भवभूतिः स्वयं तत्र पदवाक्य प्रमाणज्ञः आसीत्। पदशास्त्रं ज्ञातवान्, वाक्यशास्त्रं ज्ञातवान्, प्रमाणशास्त्रम् अपि। अयमासीत् पदवाक्य प्रमाणज्ञः। पदशास्त्रं नाम व्याकरणं, वाक्यशास्त्रं मीमांसा, प्रमाणशास्त्रं
वाक्यशास्त्रं मीमांसा प्रमाणशास्त्रं तावत् न्यायः शास्त्रत्रयं ज्ञातवान् स्वयं च साहित्यिकः साहित्यमपि ज्ञातवान् कविः एवं सः प्रसिद्धः विद्वान् प्रकाण्ड पंडितः इत्यत्र नास्ति संदेहः। तस्य नाम प्रसंगे आलोचना अपि विद्वत्सु भवति। तदा केचन वदन्ति असौ श्रीकण्ठः आसीत् यतोहि पिता अस्ति नीलकण्ठः, नीलकण्ठस्य पुत्रः श्रीकण्ठः, पितृप्रदत्तं नाम श्रीकण्ठः। किन्तु परवर्तिनि काले अयं शिवस्य उपासकः आसीत्। तपस्विकां मतोऽवस्थाम् इति स्मेराननौ इव तस्य शिववन्दना गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननौ एवं सांबा पुनातु भवभूति पवित्र कीर्तिः। तत्रस्य अयम् अभिप्रायः श्रीकण्ठः शिवस्य मातुः पार्वत्याः उपासकः आसीत्। तयोः आशीर्वादात् अयं भवभूतिः भवस्य भूतिं प्राप्तवान्, शिवस्य आशीर्वादं लब्धवान्। अतः अयम् अनन्तरं भवभूतिः सञ्जातः इति अनेके विद्वांसः गवेषकाः वदन्ति। किन्तु भवभूति नाम्ना अयं ख्यातः अस्ति, न श्रीकण्ठ नाम्ना। केचन मीमांसकः उम्बेकः अयमिति अनेके वदन्ति एवं तस्य नाम विवादः तु वर्तते। किन्तु सः भवभूतिः अस्माकं पुरस्तात् भवभूति नाम्ना राजते। वयं तं भवभूति नाम्ना एव जानीमहे। अयं भवभूतिः अष्टम शतकीयः अष्टमशताब्द्याम् अयम् आसीत्। तस्य समयः तस्य कृतित्रयं दृश्यते। एक कृतिकं भवति कति महावीररामचरितं तपं मालतीमाधवं तत्कृत्यमस्ति उत्तररामचरितं। मालतीमाधवम् एकं प्रकरणं, किन्तु महावीरचरितम् उत्तररामचरितम् एकं नाटकम्। मालतीमाधव कृतित्रयस्य किञ्चित् परिचयम् अत्र उपस्थापयामि। मालतीमाधवे 10 अंकाः सन्ति। मालतीमाधवे 10 अंकाः सन्ति। अत्र मुख्यः रसः विप्रलम्ब शृङ्गारः। अन्ते संभोगेन परिणतः नाम मिलनं जातं मालतीमाधवयोः। बृहत् कथा मालतीमाधवस्य उपजीव्यम्। पुनश्च महावीरचरितं यदस्ति पूर्वरामायणस्य प्रसङ्गः महावीरचरिते, उत्तररामचरिते उत्तररामायणस्य प्रसङ्गः। किन्तु उत्तररामायणात् उत्तररामचरितस्य महत् पार्थक्यम् एकत्र परिलक्ष्यते। उत्तररामायणे अन्तिमे सीता पातालं प्रविष्टा, किन्तु उत्तररामचरिते तथा नास्ति। सीतारामयोः मिलनं जातम् उत्तररामचरिते। इयं कथा वस्तुतः नवीना अस्ति उत्तररामचरिते। यद्यपि उत्तररामायणे अस्य उपजीव्यं, किन्तु कविः तावत् प्रजापतिः भवति। कविप्रजापतिः निरङ्कुशः कवयः। अतः समाजानुगुणं सामाजिकानां मनः दृष्ट्वा नाटकं रचयन्ति। तदर्थम् अस्माकं देशे नाटकं तावत् मिलनात्मकं नाटकं भवति, विच्छेदात्मकं न भवति। भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे अपि तथा प्रमाणयति, नाटकं मिलनात्मकं भवेत् न विच्छेदात्मकम्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा परिवर्तनं
छेदनं कृतवान् उभयोः मिलनं कृतवान्। उत्तररामचरितस्य अयं प्रसङ्गः वर्तते। सर्वे जानन्ति कृतित्रये सर्वश्रेष्ठं तस्य उत्तररामचरितम्। अतः उच्यते उत्तररामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। उत्तररामचरिते सन्ति 7 अङ्काः। 7 अङ्काः उत्तररामचरिते सन्ति। तत्र प्रथमाङ्के चित्राणि प्रदर्शितानि। रामसीतयोः सीतारामयोः यत् कार्यजातम् आसीत् अरण्ये तत्सर्वं लक्ष्मणः प्रदर्शयति रामं सीतां च। अतः प्रथमाङ्कस्य अपरं नाम चित्रप्रदर्शनं नाम प्रथमाङ्कः। प्रथमाङ्के चित्राणां दर्शनं। तत्रैव अङ्के सीतायाः निर्वासनं भविष्यति इति सूचना अपि सामाजिकाः जानन्ति। द्वितीयाङ्के पंचवटी प्रवेशः। तत्र शम्भुकस्य वधविषयः अस्ति। द्वितीयाङ्क में शम्भुक वध का वृत्तांत है। वहाँ राम प्रवेश करते हैं, शम्भुक का वध करते हैं। तस्य अपरं नाम पंचवटी प्रवेशः। तृतीयाङ्कः यदस्ति, तृतीयाङ्कः तत्र छायाङ्कः इति नाम। माता सीता छाया, माता सीता तत्र छाया रूपेण अस्ति। रामः मूर्छां गच्छति, छाया रूपेण विद्यमान सीता आगत्य स्पृशति, पुनः रामस्य आश्वासनं भवति। जो मूर्छा हो जाता है राम, फिर उठ बैठते हैं, वहाँ सीता का, माता का स्पर्श होता है। ये सब आप लोग जानते हैं। जो छाया रूपेण छाया सीता अस्ति तत्र, वो वस्तुतः उत्तरामचरिते 7 अङ्काः तु सन्ति, किन्तु तृतीयाङ्कः गुरुत्वपूर्णः भवति, महत्त्वपूर्णः भवति। अत्र गर्भसन्धिः अस्ति। जो चौथा अंक है वो कौशल्या जनक जोग नाम चतुर्थ अंकः। कौशल्या जनकयोः मिलनं दर्शनं कथोपकथनादिकं तत्र अस्ति। लवस्य विषयः अपि अस्ति। चतुर्थ अंकः भवति। पांचवा अंक जो है तत्र कुमार विक्रमो नाम। लक्ष्मणस्य पुत्रः चन्द्रकेतुः, रामस्य पुत्रः लवः। अनयोः युद्धं भवति। अतः कुमार विक्रमो नाम पंचमांक इति कथ्यते। षष्ठ अंक जो है, छठवां अंक, कुमार प्रत्यभिज्ञानम नाम षष्ठ अंक। कुमार का नाम लव का प्रत्यभिज्ञान राम के द्वारा, जे अयम प्रायः मम पुत्रः, अयम सीतायाः पुत्रः। तृतीयांके सीता नास्ति जगति इति रामस्य वचनम आसीत्। जो आप लोग सुनिए, जो तृतीयांक है, तृतीयांक में जब पूछती है बासंती राम को सीता का क्या हाल है, तो राम जवाब देते हैं सीता नहीं है दुनिया में, अंगलतिका नियतम विलुप्ता। सीता का अंग जो है वो विलुप्त हो गया है, वो नहीं है। ये तृतीय अंक में है। छठवां अंक में जब लव को देखता है तब सोचता है कि सीता जीवित है शायद। तो ये जो है प्रसंग आगे जाता है। बहुत बढ़िया से उत्तरामचरित को लिखे हैं भवभूत ने। तो षष्ठ अंक यह अस्ति कुमार प्रत्यभिज्ञान, कुमार को पहचानते हैं। फिर जो अंतिम अंक है, सातवां अंक, सप्तम अंक, वो सम्मेलनम नाम सप्तम अंक। वहां राम सीता दोनों का मिलन होता है। लव और कुश जो दर्शक गैलरी में बैठते हैं वो भी आ जाते हैं। वहां एक उसको हम गर्भांक बोलते हैं, सप्तमांक को। गर्भांक क्या होता है? एक नाटक चलता है, नाटक के
अंक में अगर और एक नाटक आ जाता है, नाटक के किसी अंक में और एक नाटक आ जाता है तो उसको गर्भांक बोलते हैं। अंकोदर प्रविष्टोज अंगद्वारा मुखादिमान, ये साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है। तो 7वां अंक को हम गर्भांक बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तरांश का एक संक्षिप्त विषय का उपस्थापन किया। आरंभ होता है चित्र दर्शन से, अंत होता है मिलन से, बीच में बहुत कुछ होता है। ठीक है, अभी ये तो उत्तरम चर्चा से विषम मुक्तवान। इदानीम जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी बोलते हैं मनोविज्ञान, उसके ऊपर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। मनोविज्ञान के ऊपर, मनोविज्ञान क्या है? जो मनोविज्ञान वस्तुतः हमारे वो अभी पाश्चात्य लोगों का शास्त्र ऐसा हम लोग बोलते हैं। वस्तुतः अस्माकं भारतवर्षे मनोविज्ञानम अपि दर्शन शास्त्रे आसीत्। मनसः विज्ञान, मन को लेकर अध्ययन करना, ये हमारे दर्शन शास्त्र में था। उसको दर्शन शास्त्र में जो एक विषय था उसको अलग करके मनोविज्ञान बना, वो एक नया शास्त्र आ गया, उसको हम मनोविज्ञान कहने लगे। क्या होता है, मनोविज्ञान जो है पहले उसको आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। आत्मा का, आत्मानम अधिकृत्य तत्शास्त्रम अस्ति इति सर्वे वदन्ति स्म। आत्मा को लेकर के चर्चा होता था। फिर बाद में मन को लेकर के अध्ययन शुरू हुआ। मनसः विज्ञानम, वो मन विज्ञान हो गया, मन का विज्ञान। फिर बाद में चैतन्य का विज्ञान हो गया, चैतन्य का, चेतना का विज्ञान हो गया। वस्तुतः आज व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं उसको। जो मनोविज्ञान है वो वस्तुतः पहले जो आत्मा का, मन का और चैतन्य का विज्ञान था, आजकल उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी डील्स। जो कश्चन विद्वान अस्ति स्किनर, चार्ल्स स्किनर, ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट, उसने बोला है साइकोलॉजी डील्स विथ रेस्पॉन्सेस टू any and every kind of situation that life presents. Psychology deals with responses to any and every kind of situation that life presents. By responses or behavior is meant all forms of processes, adjustments, activities and expression of an organism जीवस्य, मानवस्य प्रत्येकमपि कार्यं परिशीलयति यत् शास्त्रं तत् शास्त्रं मनोविज्ञानम। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है स्किनर का। वस्तुतः किसी का व्यवहार को अध्ययन अगर हम करेंगे तो इसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये हो गया मनोविज्ञान का एक स्वरूप, मैंने छोटा सा बताया। अभी हम चलेंगे जो मनोविज्ञान और हमारा जो संस्कृत नाटक हो या किसी भाषा का नाटक हो, उसका क्या रिलेशन है। इससे पहले मैं ये बोल दूं, ये मनोविज्ञान जो है ये एक शास्त्र है, ये बहुत व्यापक शास्त्र है। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस, शाखा भी है, जैसा बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, ऐसा बहुत सारे ब्रांचेस आ गया है उसमें। और
बहुत सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के ऊपर आज थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, वो एलिमेंट्स भी बहुत है, जैसा चिंतनम, बुद्धि ही, अभिप्रेरणम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम वैयक्तिक भिन्नता क्यों होता है, संवेग, इमोशन, मूल प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही, इमानी सत्वानी तत्वानी भवन्ति। सब बहुत तत्व है, बहुत शाखाएं हैं, हर शाखा में अनेक अनेक तत्व है, एलिमेंट्स है। उस सबको लेकर के मनोविज्ञान अध्ययन करता है, मनोविज्ञान होता है। तो अभी हम, जैसे मैंने बोला कि वस्तुतः नाटक और मनोविज्ञान जो उसमें संबंध क्या है, संबंध है तो हम उत्तर रामचरित के ऊपर उसको एनालिसिस करेंगे। दृश्य श्रव्यात्म रूपस्य नाटकस्य महत्वं भवन्तः सर्वे जानन्ति। काव्येषु नाटकं रम्यमिति कथ्यते, उक्तिः वर्तते। नाटके रसभावादीनां स्वतंत्र रूपेण प्रयोगं कृत्वा आत्मानं कृतकृत्यं मनुते कविः। अतः किमुच्यते नाटकान्तं कवित्वम्। एतत् नाटकं प्रत्यक्षेण जनमनसि विद्यमानान् भावान् उद्दीपयति, कुप्रवृत्तिः दूरीकरोति, सुप्रवृत्तिः विकासयति। अतएव कालिदासेन किमुक्तं, नाटकं प्रयोग विज्ञानम्। इट इज ए प्रैक्टिकल साइंस। विचारेस्मिन् मनोविज्ञानस्य सम्बन्धः विज्ञानान्तरैः सह वर्तते इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। वस्तुतः नाटके नाट्यकारस्य स्वार्थं निहितं भवति। सः कथावस्तु माध्यमेन पात्र चरित्र चित्रण छलेन स्वीय मनोभावं प्रकाश्य आनन्दानुभूतिं प्राप्नोति। तथैव दर्शकाः नाटकं प्रत्यक्षीकृत्य पात्राणां व्यवहारान् अधीत्य स्वानुभूत्या सह तादात्म्य कुर्वन्ति। जब हम नाटक देखते हैं, हम अपने आप को दर्शक में बैठाते हैं, दर्शक में हम है, नाटक में जो मंचस्थ करते हैं एक्टर और एक्ट्रेस, उनसे हम लोग अपने आप को तादात्म्य करते हैं, उनका भाव को हमारे ऊपर लाते हैं। ये सब तादात्म्यीकरणम संस्कृत साहित्य अस्माकम् आलंकारिकाः अपि वदन्ति। दृश्य श्रव्य इंद्रियैः सामाजिकाः भाव प्रवणतां प्रयान्ति। पात्राणां संलापेषु जीवनस्य अनुभूतिं तूलयन्ति। तेन केचन नियन्त्रिताः अन्य अनियन्त्रिताः भी भवन्ति। तत्र कारणं रुचिनां भिन्नत्वम्। कालिदास ने बोला है, नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा एकम समाराधनम। बिना मनोविज्ञानम नाटकम सफलम नैव होति। एतत्तु निश्चितम्। यतो हि नाटके संजातानां मानसिक संघर्षाणां, संवेगानां, नैरास्यानां, असामान्य पात्राणां, abnormal actress एतेषां समेषाम् अध्ययनं मनोविज्ञान ज्ञानम् अन्तरा न सम्भवति। नाट्यकारोऽपि पात्राणां मनसः अवस्थिति चित्रण समये दर्शकान् तात्कालिक समाजं समयं च लक्षयेत्। तेन नाट्यकारस्य सफलता अन्यथा न। अतः यः कविः मनोविज्ञान ज्ञानी सन् स्वीयं नाटकं तथैव प्रकाशयति, तस्य नाटकं चित्ताकर्षकं प्रशंसार्हं च भवति। इसीलिए नाटक और मनोविज्ञान दोनों का एक समन्वय हम कर सकते हैं। जो कवि नाटक लिखेगा उसमें जो तथ्य देगा, जो पात्र और पात्रों का जो व्यवहार प्रदर्शन करेगा,
उसके लिए जो पात्रों का व्यवहार ऐसा क्यों हो जाता है, कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है, कभी कोई कुछ प्रतिक्रिया करता है, उस सब का कारण 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 क्या है वो मनोविज्ञान बताता है, मनोविज्ञान बोलता है। इसीलिए मेरा कहने का यह अर्थ है, अगर कोई नाटक लिखे तो उसका मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान शास्त्र को अध्ययन करना उसको चाहिए, अगर वो सफल नाट्यकार बनना चाहता है। मम अभिप्रायः भवभूतिः यदि कश्चन महान् नाट्यकारः अस्ति, यदि अस्य गणना कालिदासात् अनन्तरं भवति संस्कृत साहित्ये, अवश्यम् अयं मनोविज्ञान ज्ञानी आसीत्, मनोविज्ञान विषयस्य सम्यक् ज्ञानम् आसीत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तो इदानीं जो उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित में हम अध्ययन करेंगे। उत्तर रामचरित जो कथासार है उसका अध्ययन करेंगे, उसमें मनोविज्ञान का क्या तत्व आता है। आप लोग देखिए, मैं उत्तर रामचरित के प्रथमांक का एक प्रसंग लाता हूं। आजकल जब सिलेबस प्रस्तुत करते हैं आप लोग, सिलेबस कैसा प्रस्तुत किया जाएगा, अध्यापक के जो ज्ञान है, अध्यापक के ज्ञान के अनुकूल सिलेबस तैयारी होगा, पाठ्यक्रम तैयार होगा, या छात्रों के अभिरुचि, छात्रों के इच्छा, छात्रों का आग्रह को लक्ष्य करके, छात्रों का बुद्धि को लक्ष्य करके पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसके ऊपर शिक्षा शास्त्रियों ने बहुत कुछ कहा है, मनोविज्ञानी भी बहुत कुछ बोलता है। उत्तर रामचरित में एक ऐसा संदर्भ